Okay, guys. Hi, my name is Nikhil. I have scored last year 216 in NMAT exam. Okay. So I have gone to NRC Monji also, but I didn't, go for what do you say, choosing NMIMS because मेरे लिए थोड़ा costly पड़ गया था. Yeah. So we'll just start what exactly is going on right now. So we know that there are around what do you say, three things. But one is LS, that is language skill, which is English. So there is 36 questions here, and then you have quantitative skills, which is also 36 questions, and similarly LR is also 36 क्वेश्चन. ठीक है. अभी क्या चेंज हुआ इस साल इस कि अपना टाइम चेंज हो गया काफी. ठीक है, टाइम चेंज हो गया. तो 28 minutes, okay, and here it's 52 minutes, and here it's 40 minutes. Okay, so total you have again 120 minutes as of last time. ठीक है. The last time the slot, I mean the paper was quant dominating, but now it's not like that. ठीक है. It was 60 minutes previously, 60 minutes था previously. ठीक है, अब नहीं है. तो अब ये सब कोई झोल नहीं है, सिर्फ ओनली दिस इज देयर. एंड लास्ट टाइम इट हैज 20 minutes. Okay, now it's 28, so everything is good so far. If I see from the last year, this time the question is little fair. Last time it wasn't fair, it was more on the, I mean, side of people who are good in quant, उनके फेवर में ज्यादा था. ठीक है. अभी what is the catch right now? Adaptive, ये जो adaptive testing system है ना, this has actually created a lot of chaos. That this is there, that is there, confusion कर रहे हैं. People are putting all the informations of GMAT in that, because NMAT and GMAT are part of GMAC. So मतलब वो prepare करवाते हैं. तो people are saying no, it will be like GMAT, question stuff आएंगे. पहली बात, ऐसा possible नहीं है कि दोनों का pattern एकदम same हो, अलग अलग है. There's a difference in both. डिफरेंस ये है, वट एवर क्वेश्चन यू डू, वट एवर थिंग्स लाइक कम टू यू. ओके, जैसे कोई क्वेश्चन आया, फॉर से आरसी का क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैनॉट स्किप. व्हाट यू मीन बाय यू कैनॉट स्किप? मीन्स यू डोंट हैव द ऑप्शन कॉल्ड प्रीवियस बटन और मार्क फॉर रिव्यू. मार्क फॉर रिव्यू एंड प्रीवियस बटन नहीं है आपके पास. द ओनली बटन यू विल हैव इज नेक्स्ट का बटन. Either you attempt this question or you leave this question, but I would say you attempt this question even if you don't understand the RC नहीं समझा फिर भी करो, because थोड़ा बहुत इस पे अपन तुक्का मार सकते हैं, because no negative marking. No negative marking is what you need to know. ठीक है. Since it has no negative marking, you can go for that. Adaptive test, why it is tough is only for GMAT, because GMAT के अंदर you have negative marking. In this you don't have any negative marking, so that is why that part is very tough. Okay, एक second. Yeah, no negative marking we have. So because of that, हमारा adaptive test, the NMAT का adaptive test is better than GMAT. Okay, any day you ask me this, so because of that things are better. ओके, सो ये हटा देता हूँ एक बार. तो इसीलिए अडेप्टिव टेस्ट करके चीखना बंद कर दो. कोई इतना हवा नहीं है, वो जानबूझ के बनाया जाता है. ठीक है, वो आधे से ज्यादा पब्लिक को पैनिक करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये हो जाता है. ठीक है. ओके, the biggest thing what you need to know is, for example, if the first section you have selected is language skill, which is LS of 28 minutes, you have the 28 minutes का लॉक, मतलब लॉक लग जाएगा 28 मिनट का. इन दिस 28 मिनट whatever question has been thrown to you, say it is RC या ग्रामर आ जाता है, या फिर उसके बाद आपका नॉर्मल VA के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब ग्रामर हो गया, उसके अलावा जो बाकी हैं वोकैबुलरी है, वो कैब है, जितना भी वो आ जाता है, तो आपको 28 मिनट्स के अंदर करना होगा. इफ योर लक इज बैड, विच शुड नॉट हैपन, आरसी अगर पहले आया तो देन इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज आरसी टेक्स लिटिल मोर टाइम टू सॉल्व कंपैरेटिवली. जो ग्रामर क्वेश्चन एंड वोकैब क्वेश्चन होता है वो तो पता है, आता है तो मार्क कर लो, वरना छोड़ दो, नेक्स्ट बटन दबाओ. दैट इज वन थिंग. सो आरसी आएगा गाइस, डू इट. ओके, और इसीलिए मॉक लिखना इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन 28 मिनट्स यू विल फिगर आउट व्हाट नीड्स टू बी डन. इफ यू हैव एन फुल आरसी का पार्ट, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन इज आरसी, so you will know okay इतना टाइम मैं आरसी में लगा सकता हूँ, और बाकी ट्रेंड के हिसाब से you can make n number of patterns for yourself. If like after one RC you get one more RC, what will be the situation after that? So that is also you can do it by help of mock. So mock लिखना start कर दो. इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा मॉक लिखोगे तो तुमको थोड़ा आइडिया आना
शुरू हो जाएगा। और जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम के अंदर ये सब कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इट्स नॉट लाइक मैंने 20 मिनट में कर दिया कंप्लीट, नेक्स्ट बटन दबा, नो, और मतलब सबमिट, देयर वोंट बी एनी सबमिट। 28 मिनट्स के बाद ऑटो सबमिट हो जाएगा, तो 28 मिनट्स में पूरा ही करना है। अपना है ना क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, सीईटी किंग, उसमें कर लो, सीईटी किंग से कर ले यार, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल देना है, मॉक देना है, सीईटी किंग का है, एनमैट का यार, लिखो वहां पर है अपना पोर्टल में, ऑलराइट, या। So that is one thing. So the best part about this adaptive test is there is no negative marking. That is the trend of nmat, so no negative marking is actually good. So guys, attend everything, attend everything. जो मैं कहता था यूजुअली, एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, ये जो अटेम्प्ट पार्ट है ये कैट एंड स्नैप के लिए बहुत बुरा है, ठीक है, बिकॉज यू हैव नेगेटिव मार्किंग, बट ठीक है, बट इसके लिए एक्यूरेसी पे ध्यान देने को कहता था, बट नाउ फॉर एनमैट यू हैव टू मेक दिस योर चाचा ताऊ, जो भी बना लो, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा इसकी पूजा करनी है। जो भी तुमको लाइक लग रहा है, योर इंट्यूजन, वट एवर यू थिंक दैट योर इंस्टिंक्ट कह रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन है, तुक्का मार सकते हो, सब मार दो इसके अंदर। यस, 3 अटेम्प्ट्स आर आइडल, ओके। मैं आई टेल यू द डेट्स, आई टेल यू द डेट्स, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट्स आर आइडल, तो ये तुम कर लेना, और अटेम्प्ट्स जो हैं उनको अच्छे से रखना। जो भी तुम लोगों को ऐसा है ना कि यार क्या कहते हैं, तुक्का मार लेते हैं, मार दो, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग। एंड सीईटी ऑल्सो, इफ यू आर स्टक समवेयर, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक, जस्ट जय बाबा भोलेनाथ बोल के जस्ट मार्क वट एवर यू हैव इन योर वट एवर यू कैन डू, तो जस्ट डू दैट, ओके। तो accuracy versus attempt में I will favor into accuracy, okay. Attend the question guys, ये नहीं कि RC आ गया फर्स्ट में और उसी पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, नहीं आ रहा, छोड़ो, मार्क करो, जय माता दी ए, एंड आगे बढ़ो, दैट्स इट। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज VA एंड ग्रामर, ग्रामर एंड vocabulary will be helpful to you every year, wherever you have no negative marking in CET. Yes, that is the best part about CET, ठीक है। और स्पेंड टाइम इन आरसी, जस्ट रीड करो, लाइक अराउंड टेक 3 to 4 minutes, ओके, 3 to 4 minutes लो और आरसी रीड करो, ठीक है। उसके बाद भी ना समझ में आए, जय माता दी ए, जय माता दी भी, बिकॉज द टाइम कंजम्पशन फॉर ग्रामर एंड वोकैब इज वेरी लेस कंपैरेटिवली टू आरसी, क्योंकि आरसी में यू टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड आल्सो, ठीक है। दैट इज वन थिंग, ओके। सेकेंड थिंग इज ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन? Okay, there is no such thing, it only depends on you. अभिषेक, vocab first नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। if they put RC first, you have to do RC. if they put vocabs and everything in the last, you have to do last. if they put 2 RCs all together, you have to do that only, ठीक है। this is like that, you cannot do that. ये लास्ट ईयर पॉसिबल था, जो कि मैंने किया, मैं vocabulary ग्रामर करता था और आरसी छोड़ देता था, और उसके बाद आरसी फिर करता था, ठीक है। तो ऐसे बीच में वोकैब हो गया, आरसी मिक्सअप किया, लास्ट में तो मैंने पूरा मिक्सअप करके किया था, तो दैट वाज, ठीक है, दैट वाज समथिंग। बट नाउ देयर इज नो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन, यू कैन जस्ट सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। एलएस देख लो, या उसके बाद एलआर देख लो, या क्वांट देख लो। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट होंगे, जो अगर ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो यही किया था, ठीक है। उस टाइम पे मेरा सिचुएशन अलग था, क्योंकि मैं लास्ट में जाके आई टेंड टू गेट लिटिल टायर्ड इन द व्हाट यू से, जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लास्ट में, दिस वाज 60 मिनट्स का पेपर ना, तो 1 hour आई हैड टू डू दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, इस साल का नहीं। सो 1 hour के अंदर मैं निपटा के थोड़ा सा ब्रेक लाता था 20 मिनट्स का, एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 40 मिनट्स, ठीक है। सो that will be again my strategy if you ask me correctly, मेरा strategy यही रहेगा कि मैथ को सबसे लास्ट करो, because it has time, okay। so तुम्हारे पास थोड़ा सा बीच में cool down period होगा, so you do first LS, then LR, and then quantitative. if you actually have no idea, नहीं सर मेरे पास आइडिया नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्वांट के लिए तुम लास्ट में करो, because you will have around 52 minutes, तो एटलीस्ट अराउंड 8 minutes कूल डाउन के लिए रख लेना, थोड़ा शांत हो जाना, ब्रेन को थोड़ा ना सांस लेने देना, उसके बाद तुम जंप करना whatever your next section is, ठीक है। that is one more thing, एक सेकेंड, okay। and to determine which section is good for you, mocks again,
एंड बिफोर यू लीव टू द एग्जाम एटलीस्ट 5 मॉक्स प्लस कर लो, ठीक है। हुएवर आर गिविंग लाइक मैं सिर्फ 2 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो वो 5 मॉक कर लो बिफोर द एग्जाम, ठीक है। 5 मॉक्स इज गुड, 5 मॉक्स इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू, ओके। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अभी विल कम टू सिलेबस एज वेल। अभी फिलहाल ना अभी स्टार्ट हो गया है, यू कैन यू नो स्टार्ट पिकिंग योर विंडोज। अभी 4th से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो अगेन एज आई सेड, अटेम्प्ट्स पे पूरा ध्यान रखना, एक्यूरेसी ना भी मिले इट्स ओके, ठीक है, because there are certain questions which you won't be able to solve, and when you know those questions you can't solve or you can't handle, जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया लगाने की कोशिश करना, 20 सेकंड में आंसर जय माता दी बोल के आगे बढ़ो। नो नीड टू यू नो क्या कहते हैं वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इसमें टाइम का जरा है मामला, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, ये तो आप लोग को मैंने बता दिया बाकी चीजें। अभी क्वांट के अंदर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट क्वांट, यहां से एक सेकेंड। So these are the topics in quant, okay, as you can see these are the top anything 10 net anything bro, anything you feel, which is fine, okay. So these are the topics what you need to do, okay. What are the topics easily I can do, so that is one more thing I have to tell you, okay. So quant के अंदर मैं बता देता हूँ जो सबसे important चीज होगी वो होगी DI, ठीक है। DI is important, DI मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेटिव आती है, ठीक है, टू मच कैलकुलेटिव आती है। और कुछ टाइम अगर आपका लक अच्छा है तो आपको क्या कहते हैं अपना इजी आएंगी। मोस्टली कैलकुलेटिव आती है, मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थी, ठीक है। तो DI का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि दे आर टू कैलकुलेटिव, ठीक है। दैट इज द टफ पार्ट इन दिस, दैट इज द ओनली टफ पार्ट। देयर वोंट बी कॉम्प्लिकेटेड लाइक यू नो इन स्कैट के अंदर जितना कॉम्प्लिकेटेडनेस होती है DI में उतना बिल्कुल भी नहीं होगा। इट विल बी जस्ट कैलकुलेटिव, दैट इज डोंकी वर्क इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। दैट इज वन थिंग। इफ in quant section you get first DI, okay, solve fast, जितना जल्दी इसको खत्म कर सकते हो करो, ठीक है। 52 मिनट्स में मैं कहूंगा 10 to 12 मिनट्स वेस्ट मत करना। और अगर तुम्हें लगे तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है लीव इट, ठीक है। तुम्हारे बाकी के जो चीजें होंगी ना, जो बाकी का इजी पार्ट है एग्जाम के अंदर विच इज लाइक मॉडर्न मैथ, वो देना बहुत जरूरी है। मॉडर्न मैथ ये हमेशा इजी पूछते हैं। लास्ट टाइम अराउंड 6 चैप्टर्स मैंने मॉडर्न मैथ का किया, एंड आफ्टर फिनिशिंग माय DI आई एक्चुअली वेंट टू मॉडर्न मैथ एंड आई डिड अराउंड 8-9 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 6 चैप्टर्स में करके गया था और उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे बिकॉज दैट टाइम क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। 34-35 के करीब क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब ज्यादा ही थे तो मेरे से हो गया था। दैट इज वन थिंग। यार बाद में नहीं कर सकते DI, यही तो प्रॉब्लम है। वट एवर इज गिवन फर्स्ट टू यू, यू हैव टू कंप्लीट एंड गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। यू डोंट हैव प्रीवियस ऑप्शन, प्रीवियस बटन नहीं है तुम्हारे पास, ना तो रिव्यू ऑप्शन है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम द स्टार्टिंग, that you cannot do this, okay. You have to do whatever is given to you, so you do DI। अगर मिलता है DI करो, नहीं हो रहा जल्दी सॉल्व करके छोड़ो, बाकी चीजों पे भी करो। आई एम कमिंग देयर ऑल्सो। शुभम रुक जाओ, वेट वेट वेट। तो दैट इज वन थिंग इन DI, ओके। DI जल्दी करो और भागो, दैट्स इट, एंड इट विल बी कैलकुलेटिव, देयर वोंट बी टफनेस, ठीक है। और बस वही जल्दी निपटाओ यार, और क्या कर सकते हैं इसमें। अभी मेरे पास भी ज्यादा डेटा नहीं है इस रिगार्डिंग, क्योंकि कोई लिखेगा तभी मैं उससे भी डिटरमाइन कर सकता हूँ आगे आप और क्या स्ट्रैटेजी लास्ट ईयर के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। देन लेट्स कम टू मॉडर्न मैथ, ठीक है। मॉडर्न मैथ के अंदर आते हैं कि क्या अच्छे टॉपिक्स हैं आपके मॉडर्न मैथ के अंदर। नो डाउट जो सबसे पहला टॉपिक विच आई विल आस्क यू टू डू इज APGP, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। APGP सेट थ्योरी सिमिलरली बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, एंड लॉग्स समटाइम्स मॉडरेट बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इजी, ठीक है। इजी टू मॉडरेट होता है। अगर if they are like 2 questions, right, one will be easy and one will be moderate and one will be easy, that's it, ठीक है, nothing else, there's not that much उतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन PNC एंड प्रोबेबिलिटी मॉडरेट,
पीएनसी तो मेरे हिसाब से इजी ही कह सकते हैं एक तरीके से. मैं मॉडरेट लिखूंगा, मेरे को जरा नहीं समझा था लास्ट टाइम, काफी क्वेश्चन मेरे को छोड़ने पड़े थे. प्रोबेबिलिटी इज समथिंग, if you have done around 50 questions in probability, it is easy to you. Otherwise it is tough because they can ask you anything. कार्ड्स का पूछ लेंगे, कॉइन्स का पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेते हैं प्रोबेबिलिटी में. ठीक है. पीएनसी यार मेरे लिए तो it is has been moderate. Many people claim that PNC is a very easy chapter when it comes to NMAT, but I haven't witnessed. So if I have not witnessed, I will not suggest you to go for the same thing. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी मैंने अराउंड 40-45 क्वेश्चन किया था, मेरे को 2 में से 1 क्वेश्चन आ गया था समझ में, दूसरे में मेरा ब्रेन बचा नहीं था जिंदा, तो मैं छोड़ दिया था. ओके, सो मॉडर्न मैथ में ये टॉपिक्स हैं, और भी बता दे रहा हूँ टॉपिक्स, एक सेकेंड. ओके, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन इसको मॉडर्न मैथ के अंदर ले लो. अगेन इट इज अ डूएबल टॉपिक. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ डूएबल टॉपिक. लॉगरिथम, प्रोग्रेशन इज नथिंग बट एपीजीपी. प्रोग्रेशन का असली नाम एपीजीपी है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, दैट इज प्रोग्रेशन. ठीक है, बाकी ये तो सारे नॉर्मल चैप्टर्स हैं. ओके, डीएस के अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्या आता है, मैंने लिखा भी था डीएस में. या ऑलराइट, DS के अंदर data sufficiency, which is around 3 marks. Okay guys, when you are doing subjects like number system, arithmetic and algebra छोड़ दो अभी के लिए, you cannot do algebra. ठीक है, it is अभी time is over guys. अभी honestly इतना time बचा नहीं अपने पास कि अपन algebra करें. So leave algebra. Okay, I would suggest all of you to do arithmetic and modern math and then DI. ठीक है, and number system. ठीक है, arithmetic, ठीक है, arithmetic करो, उसके बाद मॉडर्न मैथ करो, एंड देन दिस वन क्या नाम है, नंबर सिस्टम. मैं नंबर सिस्टम में भी बता दे रहा हूँ. एंड डीआई. डीएस इज मोस्टली, डीएस के अंदर ज्यादातर आपका नंबर सिस्टम से आता है. ठीक है, मॉडर्न मैथ से आ जाता है, सॉरी अर्थमेटिक से आता है, एंड देन फ्रॉम एल्जेब्रा. ओके, एल्जेब्रा आई विल नॉट सजेस्ट यू डू राइट नाउ. ठीक है, एवरेजेस इज इजी. यस, एवरेजेस आप कर सकते हो. एवरेजेस से मैंने नहीं वो, हाँ मतलब अर्थमेटिक ना यार, एवरेजेस अर्थमेटिक ही तो है, तो हाँ आता है, उसमें से आता है. या राइट, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं ऑनेस्टली. अभिषेक, दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन डेटा सफिशिएंसी. यही डेटा सफिशिएंसी खूबसूरती है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग. ओके, यू कैन नॉट जस्ट से कि ये आ सकता है वो. हाँ, तुमने जो विटनेस किया दैट इज समथिंग यू कैन टेल मी, बट अदरवाइज दे डोंट आस्क. या टाइम एंड वर्क, टाइम स्वीट, रुक जाओ रेनी, आई एम कमिंग देयर, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ. ठीक है, तो ये सब चीजें करनी है. डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, डीआई के अंदर, डू दिस पार्ट. क्या नाम है अपना, टेबल्स. जितना भी टेबल्स हैं, टेबल्स कर लो. चार्ट्स हैं, चार्ट वाले कर दो. चार्ट में पाई जो आ जाता है, ठीक है, पाई चार्ट कर लो. उसके बाद आपका ग्राफ्स कर लो, लाइन ग्राफ. ठीक है, लाइन ग्राफ एंड दिस वन अपना बार ग्राफ, या दैट वन, एंड केसलेट्स. ओके, केसलेट्स कर लो. ये सारे टॉपिक कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ. एंड काइंडली वर्क ऑन योर कैलकुलेशन. There is no calculator, so you have to do your calculation. Sir, how to improve calculation? Google में जाओ, लिखो how to do 3 into 4 digit multiplication. Sums आ जाएंगे. ठीक है, उन sums को solve करना शुरू करो. Multiplication को don't do क्या कहते हैं अपना वैदिक math, just do normal math. ठीक है, normal multiplication, normal division करो, that is better. माइटायरा इज भाई, माइटायरा क्या है भाई, नहीं पता. नॉर्मल जो होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, दिस इज द बेस्ट वे. काइंडली डू नॉट फॉलो दिस थिंग, क्या कहते हैं अपना वैदिक मैथ. ओके, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर द क्या कहते हैं प्रोसीजर ऑफ वैदिक मैथ एट द टाइम ऑफ एग्जाम. इतना घाई रहता है अपने को. ठीक है, हाँ वो बुक कर सकते हो चिन्मय, you can do that book if you want. तो बेसिक जो बच्चे करते हैं ना कैलकुलेशन, वो करना शुरू कर दो. That's why people say solve as many as problems as you can, but many times we try to indulge ourselves in those problems and we forget the calculation part. We are like हाँ calculation तो ठीक है हो जाएगा. We are always say calculation तो कर लेंगे या बाद में देख लेंगे, यार ये तो कुछ है नहीं, उस समय फास्ट हो जाऊंगा. That is a wrong thing. Even I did that in the first one. I was like हाँ यार concept important है. DI में जब क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी आ जाती है, रेशियोज आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो इस पे मुझे ध्यान देना जरूरी. आई यूज्ड टू फॉरगेट कैलकुलेशंस. लाइक कैलकुलेशन बाद में करेंगे. लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 165, यही रीजन था. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, दिमाग खराब हो जाता है चिन्ह में.
लेकिन आप कंसेप्ट रखो, लेकिन कैलकुलेशंस पे बहुत दिमाग लगाओ, ठीक है गाइस। ये है व्हेन यू आर स्किपिंग कैट, एनमैट, स्नैप, सीईटी में दम इतना लगाना पड़ता है, तभी ये टाइम बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। कैट की तरह नहीं है, अभी कितना आतंक मचा के बैठा है कैट, देख लो सब कुछ, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अभी दे हैव गिवन लास्ट ईयर का कुछ तो क्वेश्चन पेपर दे दिया, एंड दे आर सेइंग 34 32 क्वेश्चन, so that is again a chaotic thing, ठीक है। so if you want to hide from cat, you have to put some effort in other exam, and this is what you have to do, ठीक है। थोड़ा दिमाग खराब होगा, मेरे साथ भी हुआ है, but there is no other way, there is no other better exam। NMIMS मुंबई का जब आपको मिलेगा, you are selected for the what you say admission process, बस खुशी का लेवल ही अलग होगा। यू डोंट नीड IIM, यू नॉट नीड एनीथिंग। अभी दैट इज व्हाई दीस पीपल आर गोइंग फॉर एडेप्टिव एंड ऑल दिस नॉनसेंस। इन लोगों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है इस बार, NMIMS मुंबई एंड बैंगलोर दोनों का। बैंगलोर 10 to 12 lakhs अपना एवरेज लिख रही है आज की डेट में, क्यों? उनका हो रही है प्लेसमेंट। My people are there who are in Mumbai, NMIMS Mumbai, they have given me information regarding that NMIMS Bangalore also has done good this time, so yeah। हाँ राज, कर सकते हो तुम, ठीक है, कर सकते हो, नो नॉट एन इशू, दिसंबर में भी लिख सकते हो। आई मीन माय सजेशन विल बी 2 अटेम्प्ट्स रिक्वायर, ठीक है, बट सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग कर दी, 3 अटेम्प्ट्स इज नेसेसरी, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स कर लो, विंडोज 1, विंडोज 2 और विंडोज 3 एंड विंडोज 5, ओके। एंड 2 के लिए विंडोज 2 एंड विंडोज 4, ठीक है। 2 अटेम्प्ट वालों के, 3 अटेम्प्ट वालों के लिए ये करने का जरूरत, ओके, दैट्स इट। अब आते हैं TSD एंड TW पे, ओके। TW के अंदर ये जो मैन डेज होता है ना गाइस, TW में मैन डेज is very, they ask very often। अभी I don't know this year what they'll do, but mostly they go for क्या कहते हैं, मानसी, there is nothing like ideal dates, to be honest। I used to follow last year, few people told me that you know go in this time, go in that time, go इस डेट पे जाओ। अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, let me tell you the ideal date का आइडियोलॉजी, जो कि तुम्हें नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो TSD and TW also you can do, but first do arithmetic, ठीक है, देन डू मॉडर्न मैथ, देन DI। ये हो जाए एक बार कंप्लीट, उसके बाद ही TSD देखो, ठीक है। TW इसके साथ ऐड कर सकते हो, बिकॉज मैंडेज इज समथिंग दे आस्क, दैट MDH/W, बस दैट्स ऑल दे आस्क, ओके। और बहुत इजी, अगेन कैलकुलेटिव रहता है, ये कैलकुलेटिव रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वो लोग कैलकुलेशन डाल देते हैं और डेसिमल्स में आंसर आता है, ठीक है। ये भी हुआ है 1-2 बार, तो वो एक चीज है। उसके अलावा पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये आया है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मेरे दोनों स्लॉट में आए थे, तो अगर टाइम है या तुम्हारे पास स्लॉट में अवेलेबल है, डू क्या कहते हैं अपना पार्टनरशिप एज वेल, ओके। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्लॉट 1 2 3 4 बेटर, मैं बताता हूँ पार्टनरशिप एंड रेशियो, या ओके, थैंक यू चिन्मय। एक चीज और याद आई मुझे, रेशियो एंड एवरेजेस, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन आता है, इसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस आते हैं। देन यू हैव परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ना, जब कोई क्वेश्चन आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर परसेंटेज घुसा देते हैं, रेशियो के अंदर एवरेजेस घुसा देते हैं, तो ये लोग करके ही रहते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशनल, अगर तुम्हारे पास टाइम मिले तो कॉम्बिनेशनल क्वेश्चंस कर लेना, और अगर नहीं भी मिले ये क्वेश्चंस, जस्ट डू द कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कितना भी क्वेश्चन कर लो, अगर जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने सेट थ्योरी में, मतलब मुझे आता हुआ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट उसमें स्लॉट में फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में रॉन्ग कर दिया था, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर विद द व्हाट यू से कंसेप्ट। आई जस्ट डिड एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट उससे कोई फायदा नहीं मिला, ओके। सो दैट इज वन थिंग। तो DI हो गया, DS हो गया, अर्थमेटिक हो गया, एंड एक बार मैं LR का भी बता देता हूँ, ठीक है। तो LR में गाइस अभी बताता हूँ यार, रुक जाओ एक सेकंड, ओके। इनपुट आउटपुट बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, कभी छोड़ना मत इसे, ठीक है। टाइम मिले थोड़ा इन्वेस्ट करो टाइम इसके अंदर। मैट्रिक्स भी आसान होगा, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टफ, कोडिंग डिकोडिंग विल बी लिटिल टफ, ठीक है। ब्लड रिलेशन जनरेशन टाइप क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, ठीक है। डायरेक्शन इजी, स्टेटमेंट assumption अवॉइड। if it is a statement question do it, if it is a paragraph and then ask you इसमें क्या assume किया, भाड़ में जाओ, नहीं पता मुझे। कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट डू, ठीक है, वेरी इजी।
क्योंकि इट विल बी लाइक अ केसलेट, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ होगा, जल्दी से पढ़ लो उसको, और बाय द टाइम यू फिनिश योर केस, आई मीन रीडिंग, यू विल हैव द आंसर. दैट इज द व्हाट यू से बेस्ट पार्ट अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन. बहुत आसान होता है. सिलोजिज्म्स, अगर देखो दो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लिखा है, वन विल बी टफ, वन विल बी इजी, नो डाउट. ओके, स्टेटमेंट कंक्लूजन अच्छा है, कर सकते हो. सीरीज कर सकते हो. विजुअल रीजनिंग टफ नहीं आती है. आर्ग्यूमेंट छोड़ देना, इन्फ्रेंस छोड़ देना, until unless they are just statements. Statements पे you can work out. In my time also I have left these things. ठीक है, ये almost half of the LR के अंदर half of the things were critical reasoning. So I have done only those which has statement, which had paragraph. I didn't even have the time to do it, and wasting the time is worst. तो just try to see उसमें कोई keyword मिल जाए और mark कर लो. यही maximum आप कर सकते हो in argument and inference. आर्ग्यूमेंट में दे विल गो फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दे विल गो फॉर, अदरवाइज कुछ नहीं होगा. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग गाइस, स्टेटमेंट है, assumption, inference, whatever it is, do that. otherwise पैराग्राफ है, छोड़ के भागो. टाइम बहुत कम है अपने पास, ज्यादा टाइम नहीं है इसके लिए भी, अपने पास बहुत कम टाइम है यार, अराउंड 40 minutes. 40 minutes is not that enough when you have grouping, input output matrix, coding decoding. जब ये सब आता है ना, yes is seating arrangement, yes it is a seating arrangement. so अभिषेक इतना टफ नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा. टाइम 40 मिनट है ना, इतना टफ नहीं आएगा. ठीक है, आ भी जाता तो अवॉइड करना. ठीक है, बनाने की कोशिश करना. इफ इट्स लाइक 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन दो, इसमें थोड़ा टाइम दो. 50% से कम इंफॉर्मेशन है और जहां पर तुम्हें लगेगा कि यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ केसेस इन दैट, कि इसको बिठा के हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, छोड़ देना वो चीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी और तुम्हारी ब्रेन की जो पावर होगी बहुत ज्यादा लगेगी उसमें, और तुम उसी में यू विल बी फिनिश्ड. ओके, सर्कुलर लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट नहीं आता मानसी, या ठीक है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, और मैं बता देता हूँ और कुछ मेरे नजर में है तो, ओ या राइट, ये तो बताना ही भूल गया, इंपॉर्टेंट है. हाँ भाई, टॉम एंड जेरी बोलो अपना क्या क्वेश्चन है तुम्हारा बॉस. सो गाइस, अडैप्टिव से डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो जस्ट पैनिक थोड़ा हो रहा है, एंड ये नेसेसरी भी है पैनिक. अगर तुम NMIMS के टर्म्स में देखो, क्योंकि तुमको पैसे भरने को मिलेगा ना, तो इसीलिए तो मत करना. ओके, इट इज नॉट दैट नेसेसरी. ठीक है, अगर स्कोर उस समय आ जाता है आपका, जस्ट देखो क्या क्या स्कोर है, और फीडबैक हम लोगों को कांटेक्ट करना. आई विल शेयर माय फोन नंबर, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना. मुझे तुम्हारे फीडबैक से और लोगों को हेल्प करने में इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज whoever is writing उसके लिए वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दो बार लिखना इज नेसेसरी, एक बार में गाइस नहीं हो सकता. वेरी फ्यू पीपल डू दैट, जो वो वंडर्स कर सकते हैं. मैंने खुद सेकेंड टाइम में क्लियर किया, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू. इन थर्ड में हाउ टू इम्प्रूव मोर. 10 the best thing you can do is give more number of marks. ठीक है, that is the first thing you can do. Second thing, understand where you are losing marks, और उस पार्ट को क्लियर करने की कोशिश करो. That's all. ठीक है, नहीं सेक्शनल कट ऑफ नहीं होना चाहिए, होगा तो अभी यार एक्चुअली वो क्लैरिटी नहीं आई है मुझे अभी तक. मैं अपने और उन लोगों को बोलता हूँ कि व्हाट एल्स इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड, देन हम लोग पता करते हैं. डेट्स में देखो, डेट्स तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता विंडो 1, विंडो 2 एंड विंडो 3 आप कर लेना. यार रुको एक सेकंड, बता ही देता हूँ, रुक जाओ. ओके, या सो देखो ये स्टार्ट हो रहा है, इफ इट्स स्टार्टिंग फॉर 4 नवंबर. सो 4 नवंबर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो चलो विंडो में निकाल ही लेते हैं. विंडो 4, विंडो 5, और एंड कब हो रहा है? January 30th. ओ भाई, फिर तो ये समझ गया क्या सीन है. ओके गाइस, तो बेसिकली क्या होगा, नवंबर है तो नवंबर में ये दो होगा, दिसंबर में ये और ये होगा, और विंडो 5 में पूरा जनवरी रहेगा. ठीक है, ये मोस्टली होने वाला है. गाइस एक चीज बता दूं मैं तुमको, यार आई डोंट नो इफ दैट विंडो इज देयर. आई थिंक विंडो इज देयर, ऐसा नहीं है. वो जो भी रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है मानसी, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम देम. इफ यू हैव डन उसमें अगर तुम्हें स्लॉट दिया हुआ है, सो देयर इज विंडो. ठीक है, विंडो होगा. और अगर है भी नहीं भी, डजंट मैटर. मैं एक रियलिटी बताता हूँ तुम लोगों को. देयर इज लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस. ठीक है, तो 2-3 लोगों ने यूट्यूब वीडियोस में कहा था कि लास्ट ईयर 2019 के अंदर 8th
दिसंबर से पहले एग्जाम स्लॉट जो विंडोज 5 में है, whoever are giving in विंडोज 5, ठीक है, 8 दिसंबर में लिख लेना। मैंने 17 दिसंबर लिखा था, ठीक है, मैंने 17 दिसंबर लिखा था। ये वही लोग थे जिनका मैंने फॉलो किया था, ओके, एंड आई गॉट 165। मैंने, उन्होंने कहा था बिकॉज ऑफ स्केलिंग, ओके, इन 17 दिसंबर उन्होंने कहा था स्केलिंग बहुत तगड़ी होगी, पीपल विल नॉट गेट क्लियर। आई गॉट 216। सो आई डोंट केयर विंडोज 1 2 3 कब लिखना है, कभी भी लिखो, यू बी कॉन्फिडेंट, नथिंग एल्स। ये सब यार एक्सटर्नल फैक्टर है, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो आई डोंट केयर विच विंडो यू कैन राइट, जस्ट सी if you can write 3 times that is better, ठीक है, but let me work on this, let me find out अगर ये सब क्या नाटक है, then we'll see to it, okay। हाँ, Tom and Jerry, if that is possible do it, okay, if that is possible do it, avoid traveling, avoid करो, ठीक है, that is one thing। so this is okay। तो एक इंग्लिश में मैं और बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। आरसी रहेगा, you will have पैराजम्बल, you will have error identification, what kind of error इट इज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के लिए गाइस आपके पास क्या कहते हैं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, सब्जेक्ट वर्ब, यस टॉम एंड जेरी, आई विल डू दैट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेना, प्रेपोजिशन के अंदर काम बन जाएगा। मोस्टली दे आस्क फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बुक, विच बुक यू आर आस्किंग मी, अभी बता देता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था बुक, ठीक है, इसी बुक से मैंने पढ़ा था। तो ओके, यू कैन गो फॉर रेनिन मार्टिन, रेनिन मार्टिन जो भी नाम है, रेन मार्टिन जो भी नाम है उस बंदे का, उसकी बुक। मेरे लिए ये बुक वाज रियली हेल्पफुल टू मी, ठीक है। द डॉक्टर बीबी जैन हैज एक्चुअली रिटन द रेन एंड मार्टिन बुक इन अ वेरी इजी लैंग्वेज विच इज दिस वन। सो उसमें जो प्रपोजिशन चैप्टर था, आई डिड दैट कंप्लीटली, मैं पूरा पढ़ के गया था गाइस, ठीक है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो हो गया था मेरा क्लियर उससे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, okay, sentence completion, sorry, sentence correction, I'm so sorry, sentence correction, and then you have analogy. Analogies का guys, there are types of analogies, okay, there are a lot of types, एक एक type कर लेना, okay, trying to find the relevance in each and everything, और फिर complete कर देना, ठीक है, that's it, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में ये चीज़ है। यस रिनी, यू हैव टू डू टाइम स्पीड डिस्टेंस, बट जो मैंने चैप्टर्स कहे उनको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि वो चैप्टर ज्यादा आसान है। यूजुअली टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन टफ होते हैं, टफ मींस मॉडरेट होते हैं, ठीक है, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। आपका मॉडर्न मैथ स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी आते हैं, ओके, या दैट इज वन थिंग। शुभम, जस्ट पोस्ट योर क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ओके। नंबर सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन क्वांट, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या टॉपिक, वैसे मैं बता दूं, नंबर सिस्टम अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक है, मेरे टाइम पे भी आए थे। सो यस, जीडीपीआई सब होगा, बट जीडी शायद नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, बिकॉज इट विल बी ऑनलाइन, ठीक है। वो लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन, बट रिमेंबर दे कैन गिव यू सिचुएशन और तुम्हें उस सिचुएशन का आंसर निकालना है दैट टाइम। शुभम, दैट विल बी योर जीडी, okay, if you know how to assign things to your teammates, you are a good leader, ठीक है। if somebody else is your leader, how to be a team player, that is a good thing। so ये सब चीजें वो टेस्ट कर लेंगे। अभी गाइस, अभी के लिए we don't know what will happen, but most probably सब इस बार ऑनलाइन होगा। nothing, you don't have to go there because बॉम्बे में बुरा हाल है अभी फिलहाल, ठीक है। but let me just complete with the number system, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम। गाइस, रिमाइंडर थ्योरम की एक पूरा सेशन है इन अवर व्हाट यू से पोर्टल, ठीक है। पोर्टल के अंदर बेसिक्स, ई बेसिक्स के अंदर, ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं गाइस, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारा आ गया फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड आता है तुम्हारा लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो वो सब कर लेना, ठीक है। और उसका बेसिक्स, नंबर ट्री बेसिक्स भी पूछ सकते हैं तुमको, या इसको डीएसएम के फॉर्म में पूछ लेंगे। तो नंबर सिस्टम इज आल्सो गुड। सो नंबर सिस्टम हुएवर इज टारगेटिंग कि आई हैव टू डू नंबर सिस्टम, पोर्टल का क्वेश्चन, पोर्टल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बेसिक्स अलोन, दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ। because while I was
सीइंग नंबर सिस्टम, मैंने कहा यार ये तो सभी कुछ कवर कर दिया इस बार, ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था बट इस बार सब कुछ कवर कर दिया है, सो दैट इज वन थिंग। ओके या अभिषेक, आई विल डू दैट, ठीक है, जिस क्लास खत्म हो जाए आई विल डू दैट। या okay, so guys, this is what you have to do. Do not panic, okay, kindly do not panic। और ज्यादा भड़कने की या गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं होगी, आराम से जाना, जितना काम और कंपोज माइंड होगा तुम्हारा उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, ठीक है, दैट इज वन थिंग। चिन्मय, आई विल डू दैट, जस्ट वेट, काइंडली वेट, आई विल डू दैट, आई जस्ट टेल यू। नेक्स्ट फेज का वेट करो, नेक्स्ट वीक वेट करो, आई विल टेल यू दैट, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं, ठीक है गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, तो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ही ले लेता हूँ, अभी क्वेश्चंस में मुझे और 1 घंटा लग जाएगा, सो ओके दैट्स इट।